Problem number 11th. We have not done problem number 11. So let us start problem number 11th. Am I audible? Yes, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, chalo. Let us start. Mr. Vaibhav and Company of Aurangabad consigned to Mr. Vishal of Beat 5,000 cement bags costing rupees 80 per bag. So, Mr. Measures Vaibhav is consigner and Mr. Vishal is consignee. कितने bags consign किए? 5,000. Cost था bag का 80 rupees. Measures Vaibhav and Company, that is consigner, paid 4,500 for carriage, 2,500 for insurance and 2,200 for sundry expenses. On receipt of consignment, Mr. Vishal accepted a bill of for rupees 2 lakhs, which was discounted by consigner at the bank for 1,99,500. 2 lakh का bill अगर 1,99,500 में discount हो रहा है, तो कितना है discount? What is the amount of discount? And discount was 500. passed to consignment account. Yes, discount is 500. Discount is 500. Vishal sent an account sales showing as follows. Cash sales of 4,000 bags of cements at rupees 95 each. Expenses paid by Vishal were, ये consignee से related है. Go down rent 2,000. Selling expenses 6,000. Mr. Vishal remitted the balance due by bank draft and deducted expenses and commission at 2% on gross sales. Goods consigned were 5,000 cement bags. कितने bags भेजे थे? 5,000. उसमें से विशाल ने कितने सेल किए? Only 4,000. Vishal has sold only 4,000 bags. So 1,000 cement bags are still lying. 1,000 cement bags are still lying in the godown. 1,000 cement bags are still lying in the godown. Correct? Can we start? Start the problem? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चलो. Chalo, let us prepare the accounts. क्या क्या accounts बनेंगे? What accounts are we going to prepare? और किसके बुक में? हाँ, बिल्स का रिपीट कर रही हूँ. 1-2 मिनट दो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वापस से. डोंट वरी. Don't worry, I'm explaining again. So in the books of Measures Vaibhav and Company, Measures Vaibhav and Company, you have consignment account as well as Vishal of Bead. जब भी जगह का नाम दिया होता है ना, तो नॉर्मली लिख सकते हैं.
So this is information. Let us start. We'll start again. सबसे पहले दिया है मेजर्स वैभव एंड कंपनी ऑफ औरंगाबाद कंसाइन टू मिस्टर विशाल ऑफ बीड 5000 सीमेंट बैग्स कॉस्टिंग ₹80 पर बैग. कितने सीमेंट बैग सेंड किए हैं? 5000 सीमेंट बैग्स एट ₹80 पर बैग. सो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहाँ आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड अमाउंट इज कितना अमाउंट होएगा? 4000 इंटू 4000 सॉरी 5000 बैग्स भेजे थे 5000 इंटू 80 5000 इंटू 80 कितना होता है? 4 lakh. 4 लाख. वेरी गुड. ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है. मेरे ख्याल से गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अभी मेजर्स वैभव एंड कंपनी पेड 4000 फॉर कैरेज 2500 फॉर इंश्योरेंस एंड 2200 फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस. अब ये एक्सपेंस किसी का माइक म्यूट है और आवाज आ रही है. कुसुम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. म्यूट योरसेल्फ. यस जस्ट सी. वैभव एंड कंपनी. वैभव मतलब कंसाइनर. कंसाइनर ने एक्सपेंसेस इनकर किए. एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड ही आएगा. इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट. यस नो. Yes. कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्या? Yes, ma'am. क्या लिखेंगे? यस तो ठीक है. लिखेंगे क्या? कंसाइनर अगर एक्सपेंसेस इनकर करता है तो हम लिखते हैं टू कैश और बैंक. बैंक अकाउंट तो कैश ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस एंड भी फॉर्चुनेटली हमको एक्सपेंसेस मालूम है तो हम एक्सपेंसेस के डिटेल के साथ लिखेंगे. ओके क्या क्या दिया है? कैरेज 4500. कैरेज 4500. उसके बाद दिया है इंश्योरेंस 2500. इंश्योरेंस 2500 and sundry expenses 2200. Sundry expenses 2200. So क्या होना चाहिए? 4500 plus 2500 6 7 7 plus 2 is 9. कितना होता है? Please put the answer in the chat box. Total कितना होता है? Yes Deepen, very good. 9200. ओके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. On receipt of consignment, Mr. Vishal accepted a bill of ₹2 lakhs. मतलब विशाल ने वैभव को 2 लाख का बिल दिया. What would be the entry? विशाल ने वैभव को 2 लाख का बिल दिया. मीन्स वैभव को BR मिला. किससे मिला? विशाल से. What would be the entry? हम लोग वैभव की बुक्स में हैं. वैभव को BR रिसीव हुआ. वैभव हैज रिसीव BR. What would be the entry? Bill receivable account debit. Yes.
राहुल बिल रिसीव हो रहा है, क्यों नो एंट्री? बिल रिसीव हो रहा है और विशाल ने दिया है, क्यों नो एंट्री होगी? यस, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू आंसर, क्या एंट्री होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यस, बीआर अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू विशाल। याद आया कुछ? बीआर आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू द गिवर। गिवर कौन है? विशाल। यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखो, बीआर अकाउंट डेबिट टू विशाल। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। Yes, BR account debit to Vishal. Is it clear? Vishal is the giver. तो BR आया, BR account debit to विशाल। विशाल अकाउंट में लिखेंगे, BR अकाउंट तो नहीं है लेकिन विशाल का अकाउंट है, विशाल अकाउंट में लिखेंगे बाय BR, बाय बिल्स रिसीवेबल एंड अमाउंट इज 2 lakhs। राहुल क्लियर है? यस। यस मैम। बीआर डिस्काउंट करवाया फॉर 1,99,500, मतलब बीआर डिस्काउंट करवा के आपको मिल रहा है 1,99,500। बीआर डिस्काउंट करवा के कितना मिल रहा है? 1,99,500। 2 लाख की जगह पे कितना मिल रहा है? 1,99,500। 2 लाख की जगह अगर 1,99,500 मिल रहा है मतलब 500 डिस्काउंट है। व्हाट इज द एंट्री फॉर बीआर डिस्काउंटेड? बीआर डिस्काउंट करवाते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। यस मोसेस, वेरी गुड। मेरा एक ही फेवरेट स्टूडेंट है ये क्लास में, वो मोसेस है। वैसे मोसेस, व्हाई डोंट यू कम फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स? मैम घर पे नहीं भेजते। घर से नहीं भेजते। टू बीआर, अभी बैंक से हमको मिला 1,99,500। डिस्काउंट इज 500। हाँ यस, डिस्काउंट इज 500। मातू जाग गया। एंड बीआर का अमाउंट है 2 lakhs। ठीक है, अब ना तो हमारे पास बैंक अकाउंट है, ना तो हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट है, ना तो हमारे पास बीआर अकाउंट है क्या कोई भी अकाउंट? डू यू हैव एनी ऑफ दिस अकाउंट? नो मैम, नो। लेकिन हमको ये पता है कि डिस्काउंट इज एन लॉस एंड दिस लॉस इज टू बी चार्ज टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे लिखा भी है, डिस्काउंट वॉज चार्ज टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब डिस्काउंट एक्सपेंस है जो हमको कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाना है। तो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा टू डिस्काउंट ऑन बीआर 500। Is it clear? यस मैम। Are you getting it, everyone? यस मैम, Next. अभी उसके बाद विशाल ने अकाउंट सेल्स सेंड किया जिसमें उसने कैश सेल्स किया 4,000 बैग्स एट ₹95 ईच। कंजाइनी ने गुड सेल किए। कहाँ आता है सेल? जल्दी बताओ, सेल कहाँ आता है? कंजाइनी ने गुड सेल किए, सेल कहाँ आता है? कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय। सेल किसने किया है? कंजाइनी ने। तो मैंने लिखा बाय विशाल। कितने बैग सेल किए उसने? 4,000 into 95। सो 4,000 into 95 ब्रैकेट में लिखना है सेल्स। कैश सेल्स भी लिख सकते हो आप। हाँ बोलो अमाउंट। 3,80,000। 3 लाख। ओके, 3,80,000 बाय विशाल लिखा है तो विशाल में लिखना पड़ेगा 2।
to consignment account. अभी तक तो हमारा लेवल बहुत सिंपल चल रहा है. ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स एंड अमाउंट हमको पता है, अमाउंट इज 3,80,000. अभी तक तो हमने डेल क्रेडिटर कमीशन वो सब कुछ किया ही नहीं है. वी आर ऑन वेरी बेसिक थिंग्स, स्टिल यू ऑल आर नॉट एबल टू कोप अप. अभी विशाल ने एक्सपेंसेस पे किए. विशाल एक्सपेंसेस पे करेगा. एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा? एनी एक्सपेंसेस फॉर कंसाइनमेंट कहाँ आएगा? डेबिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड. डेबिट साइड. किसने इनकर किया? विशाल ने. तो विशाल लिखेंगे टू विशाल अकाउंट. अभी उसने इनकर क्या क्या किया एक्सपेंसेस में? उसने इनकर किया गोडाउन रेंट. कितना? 2,000. and selling expenses, that is 6,000. So total is 8,000. ओके. अभी टू विशाल लिखा है तो विशाल में लिखना पड़ेगा बाय कंसाइनमेंट. बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 8,000. Is it clear? Yes, no? Yes, ma'am. अब लास्ट पार्ट बोला है मिस्टर विशाल remitted the balance due by bank draft after deducting expense and commission of 2% on sales. विशाल को कमीशन देनी है. विशाल को क्या देना है? कमीशन. कहाँ से दोगे? टू विशाल को देना है, इसलिए लिखूंगी टू विशाल. अकाउंट ब्रैकेट में लिखूंगी कमीशन. कितना कमीशन? 3,80,000 पे 2%. 3,80,000 का 2%. सेल्स 3,80,000 है. 3,80,000 का 2% कितना होता है? 7,600. 7,600. टू विशाल लिखा है तो विशाल में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट. ब्रैकेट में लिख दो कमीशन एंड अमाउंट इज 7,600. ओके. ओके. Yes, ma'am. एनी डाउट? No doubt. सब हो गया. जितना बोला था प्रॉब्लम में हमने कर लिया. नाउ लेट अस फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक. क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट विल फाइंड आउट? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट ऑफ 5,000 बैग्स निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ 5,000 बैग्स. Cost of 5,000 bags 4 lakhs. ठीक है. Expenses of consignor पूरे लेने हैं. Expenses of consignor हमको पूरा लेना है. Expense of consignor कितना है? 9,200. कितना है? 9,200. एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी लेना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि कंसाइनी का कोई भी एक्सपेंस कैरेज नहीं है. जो भी एक्सपेंस है वो सेलिंग एक्सपेंसेस है. गोडाउन रेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस. तो कंसाइनी का एक्सपेंसेस 0 होगा. सो टोटल कॉस्ट फॉर 5,000 बैग्स. ये जो भी आया वो कितने बैग्स के लिए आया?
5000 बैग्स के लिए 4,09,200, 4,09,200. What will be the cost of 1000 bags? मुझे कैसे पता चला 1000 बैग्स बचे हैं? क्योंकि हमने कंजाइन किए थे, वैभव ने कंजाइन किए थे 5000 बैग्स. यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाता है. देखो कंजाइन कितने किए? 5000. सेल कितने हुए? 4000. तो 1000 बच गए ना. So what will be the cost of 1000 bags? 4,09,200 into 1000 divide by 5000. 81,840. कितना? चैट बॉक्स में डालो ना, चैट बॉक्स में. All of you all calculate and put the answer in the chat box. Please put the answer in the chat box. Everyone calculate 4,09,200 into 1000 divided by 5000 कितना होता है? Yes, Varsha, Rahul, Nandini, very good. Kirti, very nice. So answer is 81,840. Yes, Moses. So answer is 81,840. Consignment stock लिखा मैंने यहाँ पे. By consignment stock 81,840. Now we need profit or loss. हमको क्या चाहिए? Profit or loss. टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का. क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे. कितना होता है? 4,61,840. 4,61,840 आया. टू प्रॉफिट एंड लॉस. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना होगा? चलो 4,61,840 में से माइनस करो 4,09,200, 500, 8,000 एंड 7,600. ये सारे आइटम्स माइनस करो और बैलेंस निकालो. चलो देखते हैं हु कम्स फर्स्ट. 4,61,840 minus 4 lakhs minus 9,200 minus 500 minus 8,000 and minus 7,600. कितना आया? Rahul says 36,540. What about others? Yes, वर्षा का भी आंसर सेम आया है. सेम है सेम है. आंसर इज 36,540. सबको आया क्या? जस्ट चेक. Yes. चेक. Yes, ma'am. आया प्रॉफिट एंड लॉस 36,540. Yes, ma'am. यस. चलो नाउ लेट अस कैलकुलेट बैलेंस ऑफ कंसाइनी अकाउंट जो उसने पे किया है बैंक ड्राफ्ट से. बोला है ना बैंक ड्राफ्ट से पे किया है. इसका जो भी बैलेंस है वो उसने बोला ही हैज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट. बाय बैंक ड्राफ्ट कितना? दीपेन आंसर नहीं आ रहा है बेटा. 3,80,000 माइनस 2 लाख माइनस 8,000 माइनस 7,600 कितना होता है? 3,80,000 माइनस 2 लाख माइनस 8,000 एंड माइनस 7,600 कितना होता है? व्हाट इज द आंसर? राहुल का आंसर है 1,64,400. आप लोग चेक करो आप लोग को क्या आंसर आ रहा है. राइट है मैम, राइट है. राइट है. वेरी गुड. चलो मैं भी देखती हूँ राइट है क्या. यस इट्स करेक्ट. इट्स 1,64,400. समझ में आया?
इज इट क्लियर? अभी आप लोग ना आज मुझे एक प्रॉब्लम सिमिलर टाइप का करके व्हाट्सएप करोगे। क्या मैम? एक प्रॉब्लम होमवर्क दूंगी, वो करके मुझे भेजना है, समझा? ठीक है मैम। मैम आप रिवॉर्ड दोगी ना? यस हाँ दूंगी ना। कौन बोल रहा है? ये नीरज। हाँ अभी ज्वाइन किया लेक्चर क्या नीरज? नहीं रिवॉर्ड मैम, कल चाहिए, वो सब चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए लेकिन हमको। नहीं मैम, क्या मैं तो कभी का ज्वाइन किया हूँ। क्या चाहिए मैं मैम, चाहिए, पढ़ाई भी 24 चाहिए। मिनट हो गए मेरे को ज्वाइन किए। बिल्स रिसीवेबल अगर डिस्काउंट करवाते हैं तो उसका रिकॉर्ड नहीं आता है राहुल। बीआर अगर हम डिस्काउंट करवाते हैं तो उसका रिकॉर्ड नहीं आता है, सिर्फ डिस्काउंट आता है। उस दिन भी मैंने वही बोला था आपको। प्रॉब्लम नंबर 21 सेम है जो भी हमने किया, सेम, खाली नाम चेंज हो गया, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज सेम। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन सिखाने तो दो। अभी मेरे ख्याल से ना सारे प्रॉब्लम्स जो हमने सीखे थे वो सब खत्म हो गए। अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में चालू करना है इनवॉइस प्राइस वाला प्रॉब्लम। Problem number 24th is homework. This is university problem. Try it and complete it. 24th is homework. Try and complete it. Send me on WhatsApp. Once you have solved it, send me on WhatsApp. ओके मैम। Okay? So chalo, let's end the lecture. See you all. थैंक यू मैम। मैम वो पहले दिखाओ ना जो आपने सिखाया था, क्या? कोई सॉल्यूशंस। एक ये क्या रहा है? मिनट इतनी शॉर्ट ले लूँ, थोड़ा और करो ना। रिकॉर्डिंग भी है वैसे।